I welcome Harish Krishnan ji and over to you, sir. Thank you. End of the session, friends. We will do the question and answer. So whatever the question you have in type the chat box, we'll definitely and try to take all of your question, whatever you have. Now over to you, Hari Krishnan ji, to guide all of our investors the opportunity to invest in manufacturing and new fund offer. Over to you, sir. Thank you so much. Good evening, friends. Hope all of you are doing well. This is the new fund offer of Kotak Manufacture in India Fund. नाउ अगर हम लास्ट के 10-15 साल देखेंगे तो दो ऐसे सेक्टर्स आते हैं. वन इज द आईटी सर्विसेज सेक्टर और दूसरा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर. अब बोथ दीज सेक्टर्स हैव क्रिएटेड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ फॉर वेरियस इन्वेस्टर्स. उन्होंने इमेजिनेशन कैप्चर किया है इन्वेस्टर्स के लास्ट 10-15-20 साल में. एंड क्लियरली ये दो सेक्टर्स जो है कोविड के जो टाइम था जहाँ पे पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में था, the whole world was shut down. Both these sectors, IT services sector हो या फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर हो, दोनों ने फ्रंट फुट में खेल के इंडिया का जो रेस्पेक्ट दिया है, that has opened the door for many other sectors. Now, while these two sectors have created phenomenal amount of respect, credibility, and value for investors, हमें ऐसा लगता है कि इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग का जो बस है वो शायद मिस किया हो. क्लियरली कंपैरिजंस गेट मेड बाय चाइना कि चाइना इज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया maybe has missed the bus and therefore cannot really compete on the aspect of manufacturing. Over the course of the next 20-25 minutes, I want to take your attention to 7 key changes. 7 ऐसे चीजें जो हुए हैं लास्ट 2-3-4 सालों में, which in my opinion has made a significant improvement for manufacturing to succeed in India. ऐसा नहीं है कि हम कल से चाइना का इक्वल हो जाएंगे, but markets, as we all know friends, respect the rate of change. कहाँ पे वो improvement दिख रहा है उस और वो improvement में अगर पैसा बना सकते तो मार्केट रेस्पेक्ट देता है ऐसे थीम में. और हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऐसा थीम है जहाँ पे अगले 5-7 सालों में there is genuinely a significant improvement in terms of a rate of change. And उसको डिस्कस करने के लिए, like I said, the next 15-20 minutes I want to take your time to explain these 7 changes that have happened. Now, while IT sector और फार्मा का जो सेक्टर है has done well, एक ऐसा सेक्टर है जिसने लास्ट 5 सालों में करीबन 8 गुना अपना आउटपुट इंक्रीज किया है. And this sector is mobile phone manufacturing in India. This year, we would be ending the year at close to about 2.5 lakh crores of output of manufacturing. We are obviously a very large country, और हमारी जो ज़रूरत थी even before Jio and came was launched and data prices came down, we were always a significant amount of user of mobile and mobile handsets. Now, almost all our mobile phone manufacturing before 2015 used to come from outside. Maybe some of you may be surprised to know that today we are a net exporter of mobile phones. जो पहले की जो चीज थी कि we were completely importing and depending on everything, today we are a net exporter. तो ऐसे क्या हुआ है लास्ट के 3-4-5 सालों में कि completely ये रिवर्सल हुआ है, and can this similar kind of thing happen in other sectors? May not, again, like I said, it's not going to happen ugly month, yeah, 6 months from now. All of these things take time. But in my opinion, the first key change that has happened in the manufacturing sector वो है tax cuts. 2018 में the finance minister reduced the corporate tax rates from 33% to 25%. ये शायद आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं. बट पॉसिबली सम ऑफ यू मे नॉट बी अवेयर कि अगर आप नया मैन्युफैक्चरिंग लेके आ रहे हो इंडिया में तो आपका टैक्स रेट है 17%. 17% इज द रेट फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग. नाउ हाल ही में लास्ट वीक में बजट हुआ है.
Now, in the budget, the finance minister has further extended the timeline for any new manufacturing to get a tax rate of 17% till March of 2024. I think it is important to understand ये 17% क्यों important है, इसीलिए क्योंकि compared to almost every large country in the world, चाइना हो, यूएस हो, यूके हो, जर्मनी हो, जापान हो, सिंगापुर हो, 17% for manufacturing is the lowest tax rate among all the large economies. And in today's environment, जहाँ पे across the board most countries are looking at increasing tax rates, इंडिया में एक stable low tax rate hai as far as manufacturing is concerned. So this, I think, is the first key change that has happened in the last 2, 3, 4 years. Now, apart from this, there have been other changes as well, including import duty protection. ऐसा नहीं है कि सिर्फ we can go and say कि Apple, you come and manufacture in India. To set up any new sector, to set up any new manufacturing footprint, वो पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए, द एंटायर वेंडर बेस. सो बहुत सारा मेहनत किया है बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज इंडस्ट्री टू गेट दिस स्टार्टेड एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसर्न. सो पॉइंट नंबर 1, टैक्स कट. दूसरा पॉइंट विच इज गॉट अनाउंस्ड इज द PLIC. तो ये PLI स्कीम होता क्या है? इज स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. नाउ ऐसा नहीं है कि ये पहले बार जो इंसेंटिव है वो सरकार कॉर्पोरेट्स को दे रही है, पहले भी देती थी, बट मोस्ट ऑफ दोस इंसेंटिव्स इन द पास्ट यूज्ड टू बी टिपिकली एक्सपोर्ट रेवेन्यू इंसेंटिव, और बहुत सारे स्कीम्स के अंदर आते थे. SCIS हो, MEIS हो, रोड टेप हो, ऐसे 3, 4, 5 स्कीम थे जो लास्ट 15, 20, 25 सालों से चल रहे हैं. नाउ a simple example of how those schemes used to work was basically, मान लीजिए कि आपका एक 2 व्हीलर फैक्ट्री है जो आपने शुरू किया है 2000 या 2005 में. तो मैन्युफैक्चरिंग का जो इन्वेस्टमेंट किया है 2005 में किया हो, उसका जो एम्प्लॉयमेंट किया हो वो 2005 में आपने वो फैक्ट्री के लिए एम्प्लॉयमेंट लिया हो. नाउ एवरी जो 2 व्हीलर हो जो अफ्रीका में आप बेच रहे हो, उसके लिए गवर्नमेंट यूज्ड टू गिव एनीवेयर बिटवीन 2 to 4% सब्सिडी. ये था टिपिकली जो एक्सपोर्ट सब्सिडी जो पहले होता था. Now, over a period of time, WTO, which is the World Trade Organization, had a lot of issues with such subsidies, and the government has also moved all of these subsidies. So, from the government point of view, nothing has changed. वो पहले भी पैसे देते थे in the form of export incentives. अभी का जो इंसेंटिव है वो है PLI. अब PLI होते हैं ये 14 सेक्टर में. थोड़े बहुत सेक्टर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स, सोलर पैनल, और थोड़े सेक्टर्स है ऑटो, फार्मा, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा. अगर आप ये देखोगे तो ये जो चार्ट है ऊपर जो है, दीज आर ऑल सेक्टर्स वेयर वी आर नेट इंपोर्टर्स, बाहर से माल आता है फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, एंड दीज आर द 3 सेक्टर्स वेयर वी आर एक्चुअली नेट एक्सपोर्टर्स, कि इंडिया के लिए भी मैन्युफैक्चर करते हैं और थोड़ा बहुत हम बाहर के राज्यों के लिए भी एक्सपोर्ट करते हैं. Now look at this violet line. This violet line is basically the mobile phone का जो हैंडसेट का जो मैन्युफैक्चरिंग जो मैं पिछले स्लाइड में दिखा रहा था. 2015 में मोबाइल फोन्स वेर वन ऑफ आवर सिंगल लार्जेस्ट आइटम्स फॉर इंपोर्ट. आज के दिन में जैसे कि मैं बता रहा था, मोबाइल फोन्स आर अ नेट एक्सपोर्टर, एंड part of the reason why this has started happening is PLI. Now we've got 18 मोबाइल फोन हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जिसमें से 11 कंपनीज ने PLI स्कीम में दे आर पार्ट ऑफ इट. I think the important thing is it is just not PLI that has got these companies into India. Even without PLI, there are companies which are part of manufacturing in India, which shows that कि overall जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग क्लाइमेट है और ओवरऑल डिमांड का जो वातावरण है, it is already competitive even without subsidies. Now, over the course of the next 2, 3, 4 years, आज जो शुरू हुआ है PLI में, typically आप सब जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जब शुरू होता है, it requires 2, 3 years to set up and then for the benefits to come through. Now, for PLI, 3 conditions are put by the government. पहला जो कंडीशन है कि इट शुड बी न्यू केपेक्स, न्यू मैन्युफैक्चरिंग आपको लगाना होगा, न्यू प्लांट डालना होगा, विच क्वालिफाइज.
दूसरा कंडीशन ये है कि उस पे न्यू एम्प्लॉयमेंट देना होगा, न्यू जॉब क्रिएशन होना चाहिए। और तीसरा, स्पेशली इन सर्टन बिग सेक्टर्स, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट होना चाहिए। और ये जो रोड मैप है ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट, वो शेयर करना होता है। और जब जब आप वो माइलस्टोन हिट करते हो तो आपको वो पेमेंट आएगा इन द फॉर्म ऑफ पीएलआई इनिशिएटिव्स, पीएलआई इंसेंटिव्स, सॉरी। नाउ व्हाट डज दिस डू फॉर द इंडस्ट्री? टिपिकली इंडस्ट्री जब कैपेसिटी एक्सपेंडिचर करती है, जब भी एक नया प्लांट डालती है, तो टिपिकली जो पे बैक पीरियड है, पे बैक पीरियड का ये मतलब होता है कि आपने आज डाला है तो करीबन 7-8 साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, इंक्लूडिंग जो लोन लिया हो एक्सेट्रा, वो आपको वापस यू विल बी एबल टू पे बैक दैट एंटायर इन्वेस्टमेंट ओवर 7-8 ईयर्स। उसको हम जनरली पे बैक पीरियड के हिसाब से बोलते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ पीएलआई स्कीम, चूंकि आपको एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है गवर्नमेंट से, वो पे बैक पीरियड हैज कम डाउन टू 6-7 years, and because tax rates are now at 17% compared to before, the payback period is now at say 5 years. So this is the second key change which has happened, and many sectors have already started investing. जैसे कि आपने बजट में भी शायद सुना होगा, even in the budget, there was increased allocation to solar panel, to auto sector, to battery storage. So these sectors have seen increase in PLI incentives by the government. So this is the second big change that has happened to make manufacturing overall start to come to life. Now, because of these various initiatives, we are already starting to see improvement as far as manufacturing sector is concerned. So this is the chart of the number of new manufacturing firms that have been set up every year. जो पहले 10,000 नए प्लान शुरू हो रहे थे, आज के दिन में करीबन 40,000 नए प्लान शुरू हो रहे हैं as far as manufacturing firms are setting up. If you look at data from environmental clearance, हर मैन्युफैक्चरिंग फर्म को अप्रूवल्स लेने होते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के अप्रूवल्स, अगेन एट रिकॉर्ड हाइज। अगर हम अपने एक्सपोर्ट के डेटा देखेंगे जो हर महीने पब्लिश होते हैं, today our overall export of goods is at record high. Our overall share in the world market is at 2%, which is again at record high. If you look at certain sectors, जैसे कि मोरबी में टाइल्स बनते हैं, today tile manufacturing in Morbi is more competitive, in Gujarat, Morbi is more competitive than China. So overall export of tiles is again booming. If you look at say mattresses, again record exports we are doing, growing by anywhere between 30-40%. अगर आप एक बिग एमएनसी कंपनी है, जो यूरोपियन एमएनसी कंपनी है, जो बाहर यूरोप में से ग्लोबल कंट्री है, उसका इंडियन कंपनी भी है। ओके, नाउ दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपिटल गुड कंपनीज, साल में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू करता है। उस कंपनी ने डिक्लेयर किया लास्ट वीक दैट दे हैव सीन ऑर्डर इंक्रीज ऑफ 57%। तो दीज आर नॉट स्मॉल नंबर्स, दीज आर नॉट स्मॉल कंपनीज ऑल्सो। अगर 10,000 करोड़ के रेवेन्यू में आपको ऑर्डर इंक्रीज 57% मिल रहा है, then you get a sense that across the board we are starting to see a lot of things starting to fall into place for manufacturing sector to start reviving. Now if you look at apart from tax cuts जो मैंने बताया और पीएलआई स्कीम, और भी 4-5 चीजें हुई है कोविड के टाइम पे। लास्ट 2 साल में जब मोस्ट ऑफ अस हैव बीन एट होम या आवर एक्टिविटीज हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड, 4-5 चीजें हुई है ओवरऑल ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स व्हिच हैज फर्दर इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया। एक है चाइना प्लस वन। नाउ चाइना प्लस वन बेसिकली इवन बिफोर कोरोना, हम सब जानते हैं कि कोरोना आया था चाइना से, बट इवन बिफोर कोरोना देयर वाज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनिमोसिटी अगेंस्ट चाइना। लोग पहले भी थोड़े बहुत परेशान थे, दे वर लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव्स कि चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ कहाँ और फैक्ट्री बिठा है। नाउ पोस्ट कोरोना ऑब्वियसली दैट इज फर्दर इंक्रीज्ड। नाउ चाइना प्लस वन का ये मतलब नहीं है कि फैक्ट्रीज बंद होगी चाइना में और शुरू होगी इंडिया में। पहली चीज है कि नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड सभी कंट्रीज चाहते हैं कि उनके यहाँ भी फैक्ट्री जाए। दूसरी बात, आज के दिन में जहाँ पे सप्लाई चेन्स ओवरऑल बहुत टाइट है,
आप शायद न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे कि शिपिंग रेट्स हैव गॉन अप, ओवरऑल कैपेसिटीज ग्लोबली बहुत कम है। यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब जो ऑलरेडी आपका बेस्ट फैक्ट्री हो, वो है चाइना में। तो दोज फैक्ट्रीज विल कंटिन्यू, लेकिन व्हाट मोस्ट कंपनीज आर डूइंग इज that they are planning their extra growth to come from countries like India. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। Again, a very large bearing company, India's largest bearing company, एक यूरोपियन एमएनसी है, और उनका प्लांट्स इंडिया में है, चाइना में है, पूरे देश पूरे वर्ल्ड में उनके प्लांट्स है। नाउ चाइना से बिफोर कोरोना they used to export close to about $1 billion of bearings to the rest of Asia Pac, right? Now ये कंपनी का ये मानना है कि जब वो प्लान करते हैं अगले 5-10 सालों में, कंपनीज हमेशा वो रेंज ऑफ प्लानिंग करते हैं, नोबडी प्लान्स फॉर द नेक्स्ट 6 months 1 year, राइट? उनको लगता है कि वो $1 billion, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन एशिया पैक, जहाँ पे और पॉपुलेशन है और जहाँ पे ज्यादा ग्रोथ है, इट वुड हैव गॉन टू एनीवेयर क्लोज टू अबाउट 1.75 to $2 billion। और वो जो इंक्रीमेंटल 750 million या $1 billion का जो एक्स्ट्रा आ रहा था, दैट दे वांट टू मूव इनटू कंट्रीज लाइक इंडिया। तो इंडिया में पहले वो कंपनी जो था, दैट यूज्ड टू इन्वेस्ट क्लोज टू अबाउट 100 crores every year. Last year they have announced a capex of 250 crores every year. ये जो इंडियन कंपनी थी पहले भी एक्सपोर्ट करती थी क्लोज टू अबाउट $100 billion। अभी उनका जो प्लान है, होपफुली ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 5-7 years can become potentially maybe $400-500 million. Now that is the nature of supply chains which take time to shift, right? थोड़े बहुत सेक्टर्स जैसे केमिकल्स में we are already starting to see that shift happening from China to India, but in many other sectors this will be a gradual process. Now the third thing that has happened is basically India has put in close to about 93 anti-dumping duties. Anti-dumping duties क्या होता है कि चाइना, बिकॉज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड था, और एंड दे यूज्ड टू undercut Indian players and supply prices at very low rates, and that used to be given a subsidy by the Chinese government, right? Now India has imposed 93 anti-dumping duties. ये बजट में भी और भी 5-6 चीजों पे import duties उन्होंने बढ़ाए हैं. So this is again something that has made Indian manufacturing more competitive. So that is the third point. But the fourth and the most important point is this chart. जब भी हम INR का रेट देखते हैं, इंडियन रूपी का जो रेट देखते हैं, वो उसका तुलना हमेशा हम US डॉलर के अगेंस्ट करते हैं। तो जनरली $1 इक्वल टू 75 इंडियन रुपीस, आज का जो रेट उसके आसपास है। यही चीज अगर हम CNY INR प्लॉट करेंगे, इसका ये मतलब है चाइनीज करेंसी कंपेयर टू इंडियन करेंसी। एक चाइनीज युआन जो चाइना का करेंसी है, कितना इंडियन रुपी इक्वल होता है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो है, सॉरी, वो है कोरोना से पहले की बात। नाउ प्री कोरोना दिस यूज्ड टू बी अराउंड 9.5-10 rupees, राइट? तो एक युआन, एक चाइनीज युआन 10 रुपए का इक्वल था ऑलमोस्ट। आज के दिन में that number is close to about 12 rupees. So over a period of 2 years, the Indian currency has become more competitive compared to Chinese yuan by almost anywhere between 15 to 20%. आप सब जानते होंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वेफर थिन मार्जिन होते हैं, और अगर कोई राज्य को ऑलमोस्ट 15 या 20% और करेंसी ने एडवांटेज दिया हो, तो आप मान सकते हो कि हाउ इट इज मेड इंडियन इवन मोर कॉम्पिटिटिव फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। इससे क्या होता है कि हमारे जो भी इंपोर्ट्स है और महंगे हो जाते हैं, सो पीपल इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम चाइना कैन नाउ लुक एट बाइंग फ्रॉम इंडिया। Similarly, if a supplier was wanting to import from either China or India, because the Indian currency has become even more cheaper compared to the Chinese yuan, India से माल लेना उनके लिए और profitable रहेगा. So both of these two have meant a significant improvement for domestic manufacturing. This is the fourth key change that has happened during the last 2 years. PLI के बारे में we have already spoken, so in the interest of time I am just skipping it. But broadly, along with the investments, they have to provide in a significant amount of both direct jobs as well as indirect jobs. The other big change that has happened is basically हमारे जो corporates है during Corona times have seen a significant improvement in overall profitability. अगर ये आप चार्ट देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे,
तो ये जो ग्रे लाइन है, दैट इज द ओवरऑल केपेक्स का जो लाइन, केपेक्स मतलब जितना कंपनीज इन्वेस्ट करती है हर साल अपने या तो नए फैसिलिटीज लगाने में या कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में, राइट। और ये जो ब्लू लाइन है ये है ब्रॉडली प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज, राइट नाउ। और ये जो ग्रीन लाइन है बेसिकली प्रॉफिट्स या कैश फ्लो ऑफ ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय केपेक्स। ये 20 साल का एक चार्ट है। तो अगर आप देखोगे 2001 से 2003 तक ब्रॉडली आर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या अपने प्रॉफिट जो है केपेक्स के तुलना में बहुत ज्यादा थे, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कंपनीज वर गिविंग मोर प्रॉफिट्स देन केपेक्स। और फिर जब 2003 4 5 6 में इकोनॉमिक एक्टिविटी इम्प्रूव, वी सॉ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन केपेक्स। Capacity expenditure went from almost 50-60,000 crores to almost 5 to 6 lakh crores over the course of the next 6-7 years। और फिर लास्ट 10 साल में ये कैपेसिटी एक्सपेंशन फ्लैट रहा है, ऑलमोस्ट एट 5-6 lakh crores। इट हैज बीन फ्लैट, राइट नाउ। because of the significant capex that we did, obviously बहुत सारे डेट लोन्स लेने पड़े कॉर्पोरेट्स को, बहुत सारे जो एक्विजिशंस बाहर किए थे स्पेशली पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-9 में, लॉट ऑफ देम वेंट बैड। और इंडिया में इट टुक अबाउट 10 years फॉर कॉर्पोरेट्स टू क्लीन अप देयर बैलेंस शीट्स एंड बैंक्स में। अगर आप जो भी हेडलाइंस आपने पहले रीड किया होगा, इट वॉज ऑलवेज अबाउट कि कॉर्पोरेट एनपीए, हर साल एनपीए आता गया। नाउ वी हैव रीच्ड अ प्लेस जहां पे वो एनपीए साइकिल इज बिहाइंड अस। मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप देखोगे कि प्री कोरोना से आज की तुलना में जो प्रॉफिट्स है वो करीबन दुगना हुए हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यूज्ड टू बी अबाउट 5-6 lakh crores, टुडे इट इज बिटवीन 10 to 11 lakh crores। तो नाउ अगेन वी आर बैक टू दैट सेम जोन where cash flow from operations या profits are almost 2 times the capex। तो जो पहले का डिस्कशन था अराउंड दिस टाइम बिफोर कोरोना, मोस्ट ऑफ द डिस्कशन इन वेरियस बोर्ड रूम्स वाज कि कैसे हम डेट को कम करें, कौन सा एसेट हम बेचे जाके हमारा ओवरऑल बैलेंस शीट सुधरे। नाउ मोस्ट ऑफ द डिस्कशन स्पेशली इन द लार्जर कंपनीज इज कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें, और जब कंपनीज इन्वेस्ट करेंगे तभी वो इंजन शुरू होगा। सो अगेन दिस इज अगेन द स्टार्टिंग ऑफ दैट साइकिल। ऐसा नहीं है कि ऑल कंपनीज विल बी इन दिस मोड। इट विल स्टार्ट विद द बिगर कंपनीज एंड देन as the cycle becomes bigger and bigger you will see more and more companies। so जो मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कार का जो गियर होता है, अगर आप देखोगे तो लास्ट ऑलमोस्ट 10 साल में वो गियर या तो न्यूट्रल गियर बोल सकते हो जहाँ पे कुछ देयर वाज नो एक्सेलरेशन या नो चेंज, बिकॉज हर साल हम उतना ही केपेक्स कर रहे थे। Today, we are now likely to get into the first and second gear। Okay, we are still very far from third and fourth gear। उसके लिए वो एनिमल स्पिरिट्स और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट 2-3 साल अगर नेक्स्ट 2-3 years अगर देखेंगे तो वो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड और फिर थर्ड से फोर्थ जाएगा। सो दिस इज आई थिंक द फिफ्थ की चेंज दैट हैज हैपेंड इन इंडिया ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 2-3 years during corona times। The other big change that has happened, which is the sixth change, is कि हमारा जो हाउसिंग सेक्टर है, which used to again be a sector जो आप सब याद रखोगे कि 2012-13 तक हाउसिंग सेक्टर was doing exceedingly well। और उसके बाद it has been again flat for a reasonable amount of time। Now we are starting to see IT sector में job creation, we are starting to see startups में job creation। Across the board we are starting to see hiring improve। And because the prices have not gone anywhere in the last 6-7 years of houses, overall affordability जो level होता है last 20 साल में one of the best affordability levels आ गया। Interest rates are at very low rates। रेरा जो regulation आया है that gives more फोकस एंड क्रेडिबिलिटी टू द कस्टमर कि जो पैसे दे रहे हैं एक प्रोजेक्ट में वो घर बन के आएगा, विच वॉज अ बिग थिंग विच वॉज नॉट देयर इन द प्रीवियस साइकिल। और फिर वर्क फ्रॉम होम और कोविड के चलते चलते many people wanted to upgrade their houses। Now all of this obviously हर घर जो बिकता है उसमें सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, वायरिंग, टाइल्स, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स। तो हर घर जो बिकता है करीबन 10-11 सेक्टर्स उसके जुड़े हुए हैं।
And therefore, as the housing sector goes up, all of these sectors also start benefiting. And the last change that has happened is basically हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है, that is the summit called COP26 summit, जिसमें इंडिया हैज बीन अ सिग्नेटरी इन द लास्ट 6 months. जो प्रधानमंत्री गए थे ग्लासगो टू काइंड ऑफ एग्री टू दिस समिट. इससे पहले भी हमारा रिन्यूएबल जो शेयर था, सोलार से हो, विंड से हो, it has gone up quite materially. Or we have been fortunate while we don't have so much of oil, so much of gas, वो सब मिडल ईस्ट में थे. As far as the geographical location is concerned, we are blessed with a very good geographical location as far as solar is concerned. Right, and therefore our incremental cost of solar power is 2 rupees. जो पहले जो coal हो, gas हो, etc., the cost of production itself was 4-5 rupees earlier. Today, that incremental cost of production from solar is coming at 2 rupees. So our overall energy mix is becoming more and more efficient. Along with this renewable solar, you've got the electric vehicle policy, you're talking about ethanol blending, smart cities, a lot of these things, hydrogen economy, ये सब नए नए चीजें which are slightly more futuristic, अभी नहीं आएंगे, maybe in under 2, 3, 4 years is when we'll start seeing this entire thing starting to change. So these are the 7 key changes that have happened in the span of the last 2, 3, 4 years, which have kind of come together, wherein we are starting to see improvement as far as the overall manufacturing sector is concerned. वापस दोहराऊंगा वो 7 चीजें जस्ट फॉर योर मेमोरी सेक. पहला है टैक्स कट्स, 17% टैक्स रेट है फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग. दूसरा है एज फार एज PLI schemes, companies have to invest in new capacities for those 14-15 sectors, जिसके कारण आपका पे बैक पीरियड बहुत कम हो जाता है एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न. तीसरा जो चीज हुआ है लास्ट 2-3 सालों में वो है कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज, जो आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन है टू मेक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मोर कॉम्पिटिटिव. चौथा जो चीज है विच आई शोड यू वाज द चाइनीज युआन टू द इंडियन रूपी. और ये सिर्फ चाइनीज युआन के अगेंस्ट नहीं है, अगर आप वियतनामीज करेंसी देखेंगे, थाई बात देखेंगे, या मलेशियन रिंगिट या जापानीज येन, जो भी अपने एशियन कॉम्पिटिटर्स है, उस सब के तुलना में we have become more competitive by anywhere between 5 to 20%, right, over the course of the last 2 years. पांचवा चीज जो मैंने दिखाया है वो ये है कि कोविड में हमारे जो कंपनीज है जिनका मेन प्रॉब्लम था टू मच ऑफ डेट और कौन से एसेट बेचे कोरोना से पहले का, ये था उनका डिस्कशन पॉइंट्स. आज के दिन में द प्रॉफिट्स हैव डबल्ड and therefore they are now sitting on profits which are almost 2 times what they otherwise invest in terms of new growth. And this is a big change. In the last 20 years we are starting to see corporates in this zone after 2001-2 वापस आज के दिन में वहां पे आए हैं. The sixth thing that I said was the housing starting to pick off, and the seventh thing is clearly our new initiatives as far as new energy and carbon footprint is concerned. तो ये सातों चीजें एक साथ आ रही है, तो we are starting to see this massive momentum in the real economy. How do investors gain from this is where we have launched this fund, which is the Kotak Manufacturer in India Fund. This is an open-ended scheme. इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स है. और अगर आप देखोगे कि 5 साल में टिपिकली ये जो इंडेक्स है लास्ट 15 साल से है, करीबन 70% ऑफ द टाइम्स दिस इंडेक्स हैज गिवन बेटर रिटर्न्स देन योर ओवरऑल मार्केट. जो निफ्टी 500 जो एक इंडेक्स है जिसमें जनरली मोस्ट फंड्स आर इन्वेस्टेड इन, उसकी तुलना में 70% ऑफ द टाइम दिस फंड हैज डन बेटर, दिस इंडेक्स हैज डन बेटर. बट मोर इम्पॉर्टेंटली, वैसे कि जनरली 5 ईयर के जो होराइजन में टिपिकल जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है, 70% ऑफ द टाइम इट इज आउट परफॉर्म्ड. लास्ट के जो 5 साल में है, ये 3 ने अंडर परफॉर्म किया है करीबन 5 परसेंटेज पॉइंट CAGR. इसका मतलब है ऑन अ 5 ईयर बेसिस ओवरऑल फंड हैज अंडर परफॉर्म बाय एनीवेयर बिटवीन 27-28% अगेंस्ट ब्रॉडर जो NSE 500 हो या निफ्टी 50 हो, जो कॉमनली मार्केट देता है या मोस्ट फंड्स आर इन्वेस्टेड इन. सो बेसिकली इन आवर ओपिनियन all of these positives that I spoke about, those 6-7 things, are yet to be fully appreciated by the market. ऐसा नहीं है कि as we all know, overall markets have done very well. बहुत सारे sectors, बहुत सारे themes already अच्छे performance दिए हैं.
And at this point, you are getting an overall theme which has actually underperformed the overall market. तो आपको एक थोड़ा बेटर रिस्क रिवॉर्ड देता है आज के दिन में, स्पेशली इन एन एनवायरमेंट जहां पे हमें लग रहा है कि ये 6-7 चीजें आ रही है, एंड उसके कारण आपका जो अर्निंग्स है इंप्रूव होगा एज फार एज द मैन्युफैक्चरिंग टीम इज कंसर्न. सो इट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ अ बेनिफिट that you are buying it at a slightly lower price compared to the rest of the market, and which is where I think the overall risk return is much better for a fund like the Kotak Manufacturer in India Fund at this point of time. हर फंड या हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होते हैं, और इस फंड में ब्रॉडली 4 तरह के रिस्क होते हैं. एक है कि कोविड. नाउ वी ऑल होप एंड प्रे दैट वी हैव सीन द वर्स्ट ऑफ कोविड एंड दैट वील ऑल गो बैक टू लाइफ एज नॉर्मल, जो पहले का था. बट वी ऑल नो दैट कि कोविड के नए वेरिएंट्स एक्सेट्रा, it's been a bit unpredictable. While we are vaccinated most of India, we'll still have to wait and see how this comes through. So if there are more lockdowns etc, it is definitely negative for the overall business sentiment. दूसरी चीज है कि when we are building out manufacturing, when we are building out infrastructure, typically we require low commodity prices या stable commodity prices. आज के दिन में commodity prices are at high levels. हमें लगता है कि यहाँ से वो आगे और नहीं बढ़ेंगे. It will not go up by under 20-30%. Because at this price almost all commodity players जो भी manufacturers है, producers है, be it of oil, be it of steel, etc., they are all making very good money. So technically, it shouldn't lead to more price hikes. But with markets, one can never say never. So that is another key risk that we have to monitor. तीसरा जो रिस्क है, क्लियरली ये टीम में गवर्नमेंट का सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now, the good thing about the budget was, despite the UP elections, which are around the corner, the budget didn't go in the populist manner. So again, it's a positive thing that they are focused on investment, they are focused on manufacturing, overall infrastructure and development policies. So that should give a lot of confidence कि government change नहीं होगा. But at the end of the day, they also have to win elections. And in the next 18 months, there are about 8 or 9 key state elections. So we have to watch out for them. एंड लास्टली, वैसे कि हम आत्मनिर्भर कैंपेन पे है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, मान लीजिए सेमीकंडक्टर चिप्स हो या एनर्जी हो, कम फ्रॉम आउटसाइड इवन नाउ. And so what is happening in, say, between China and Taiwan, Russia, Ukraine, Middle East, all of these are also potential sources of risk. Now, all of these, if you look at it, ऐसा नहीं है कि ये पूरा टीम को वो डीरेल करेंगे. आई डोंट थिंक सो दैट जो मैंने आउटलाइन किए थे वो 6-7 चीजें जो हो रही है, एंड वी आर स्टार्टिंग टू सी दी numbers already coming through. I don't think they'll get stopped because of these things coming together. What can happen is, investors and industry may want to wait out for 6 months, 9 months for some of these developments to reduce and abate. So हो सकता है कि आपका जो investment horizon हो थोड़ा और लंबा हो. I don't think it will completely derail this entire opportunity, because after a long period of time, we are starting to get this momentum back in manufacturing, and which is where I think, if we are really requiring a longer term horizon, आपके horizon at least 5 साल के ऊपर होने चाहिए ऐसे फंड में. एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि जो रिटर्न्स आएंगे वो लंपी होंगे. हर कोई मैन्युफैक्चरिंग, आप सब जानते हैं कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अभी लग रहा है तो हो सकता है कि 18, 24, 36 मंथ्स में वो प्रोजेक्ट शुरू होगा, एंड देन देयर विल बी profits coming from that project. So there is always a delay in terms of putting up a plant and putting it. Now, obviously, the good thing is India में manufacturing बहुत सारे सेक्टर्स में है. ऐसा नहीं है कि ये अकेला एक ही सेक्टर है. इसमें ऑटो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, मेटल्स आएगा, ऑयल एंड गैस आएगा, एफएमसीजी आएगा, सीमेंट आएगा, टेक्सटाइल्स आएंगे, फर्टिलाइजर आएंगे, कैपिटल गुड्स आएंगे. तो ऐसे बहुत बहुत सारे सेक्टर्स है. थोड़े बहुत सेक्टर्स में ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं कि वो अर्निंग्स आ रहे हैं, जैसे कि मेटल्स में आ रहे हैं, केमिकल्स में आ रहे हैं. थोड़े बहुत सेक्टर्स में ऐसा है कि अगले 18-24 महीने में आपको ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर एक्सेट्रा विल स्टार्ट कमिंग थ्रू, जब उनके सेमीकंडक्टर चिप्स के शॉर्टेज
विल बी हिस्ट्री, और एफडीए का जो अप्रूवल्स आएंगे फार्मा सेक्टर में, दैट विल हेल्प द ओवरऑल फार्मा सेक्टर। एंड थोड़े बहुत सेक्टर्स जो है वो पीएलआई के बेसिस पे है, रिन्यूएबल हो, सोलार हो, बैटरी स्टोरेज हो, वो सब शायद 3 से 5 साल के लिए। तो इट्स अ गुड मिक्स ऑफ सेक्टर्स विच विल हेल्प बैलेंस आउट, बट यू नीड अ लॉन्गर टर्म होराइजन टू कंसिडर इन्वेस्टिंग इन। आज के दिन में जैसे कि मैं बता रहा था कि ये 6-7 चीजें एक साथ आ रही है, और आज के दिन में वो अंडर परफॉर्म किया है, विच मीन्स आपको थोड़ा बेटर प्राइसिंग मिल रहा है to buy, given the underperformance. And therefore, if you look at it in totality, I would say that it's a very good idea to consider evaluating such a product. I'll kind of stop here, and happy to take on any questions. Thank you. थैंक यू हरीश जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया एंड आई थिंक यू हैव मेड अ सिंप्लिसिटी ऑल ऑफ आवर इन्वेस्टर विद जस्ट 7 स्टेप. You have covered the entire presentation and give the clarity to all of our investor. I'm looking for the question side. एक क्वेश्चन जनरली जो इन्वेस्टर के माइंड में आता है और इन्वेस्टर ने भी पूछा है कि व्हेन वी आर गोइंग फॉर द ओपन एंडेड फंड का, आपका जो काफी सारा फंड जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आती है तो डेफिनेटली द फंड मैनेजर कैन मूव ऑन दैट साइड एंड दे विल डेफिनेटली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. देन व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन दिस थीम फंड? एक इन्वेस्टर का जो क्वेश्चन है, तो कैन यू गाइड सम फॉर दैट? तो ये जो भी मैं सेक्टर्स बोल रहा था, ऑटो हो, कैपिटल गुड्स हो, फार्मा हो, मेटल्स हो, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर, ये सब है मैन्युफैक्चरिंग के जो सेक्टर्स। तो ये वेट्स है सेक्टर्स के, वो है निफ्टी को। एंड टिपिकली जो फंड्स होते हैं या तो निफ्टी 50 के अगेंस्ट बेंचमार्क होते हैं या निफ्टी 500 के अगेंस्ट बेंचमार्क होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये जो सेक्टर्स है वो बहुत कम वेटेज में है यहाँ पे, करीबन मे बी 30-40 और मे बी 50% is what these sectors will be having in these kind of funds. And therefore, जब manufacturing चलेगा, a lot of the funds have got, say for example जो diversified funds है उसमें भी वैसे जैसे कि कोटक के हर फंड में ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग हम इतना पॉजिटिव है कि सब में हम ओवरवेट है ओवरऑल थीम में। लेकिन ओवरऑल इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स मैन्युफैक्चरिंग अगर ओवरवेट भी रहेंगे तो होगा 25% 30% कोई फंड में, बिकॉज ऑलरेडी आईटी सर्विसेज जो बड़ा एक सेक्टर है वहां पे रहेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज एक और बड़ा सेक्टर है। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट when the overall improvement happens as far as manufacturing is concerned, this is a fund जहाँ पे 80 to 100% will be invested only in manufacturing. बाकी सब फंड में होगा, या डिस्पाइट अस बीइंग ओवरवेट विल बी वन ऑफ द फ्यू फंड हाउसेस जहाँ पे 25% मैन्युफैक्चरिंग में होगा, बाकी सब शायद 10 या 15% में होंगे। तो देयरफॉर व्हेन द फुल रिटर्न्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कमिंग थ्रू, आपको थोड़ा बहुत डाइल्यूशन होगा इन डाइवर्सिफाइड और इन ओपन एंडेड या बाकी कोई भी फंड हो। ये फंड में आपको वो पूरा 80 to 100% बेनिफिट मिलेगा whenever the manufacturing overall economy kind of improves। और जो हमें दिख रहा है कि जो मैं बताया है in terms of those 6-7 changes, we think that over the course of next 3-5 years these are the spaces जहाँ पे वो delta improvement दिखेंगे, and which is where we think it makes sense to evaluate Kotak Manufacturing in India fund। राइट. एक क्वेश्चन जो आया है, जैसे आपने बताया कि वी आर लुकिंग फॉर द डाइवर्स अपॉर्चुनिटी इन द मैन्युफैक्चर सेक्टर, बट मतलब देयर इज एनी मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो हम लोग कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वी विल डू डाइवर्सिफिकेशन टाइमलाइन फॉर दैट, या वी कैन डू व्हेनेवर वी विल गेट द अपॉर्चुनिटी? मतलब श्योर। तो ये जो सेक्टर्स है, अगर आप देखोगे ऑटो हो, जो भी सेक्टर्स है स्क्रीन में, broadly these are the weights currently of the index. Now obviously as a fund we will not be following the exact same weights, but broadly it will be around these weights. More importantly, there are some sectors जैसे कि ऑटो सेक्टर हो, जहाँ पे ओवरऑल लास्ट 5 साल में सिर्फ 5% रिटर्न मिले हैं, निफ्टी या निफ्टी 500 ने 19% रिटर्न दिए हैं।
तो हमें लगता है कि अभी इम्प्रूवमेंट होना है इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर chip shortage, etc. Maybe over the course of the next 12 months, all of those will improve. And therefore, this underperformance gives a very good opportunity for us to buy today. So we'll be a bit more aggressive in such a sector like auto हो, pharma हो, जहाँ पे ओवरऑल चीजें इंप्रूव हो रही है लेकिन ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस है। जैसे कि कैपिटल गुड्स या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो, I gave you the example of the MNC जहाँ पे order book has grown by 57%. So we are already seeing the improvement happening today, and therefore we would want to further buy today. But there are some sectors जैसे कि chemicals हो या metals हो जहाँ पे earnings have already come, and they will still come. ऐसा नहीं कि वो sector from now on earnings will not come through. I think there is scope for earnings to come through there as well. But given the fact that they have performed so well, we'll be a bit more slower in terms of deploying in those sectors. That doesn't mean that we'll be zero in these sectors, but instead of say 14% in metals, we'll take some time to get to say 10% or 12%. And similarly in chemicals. So we'll take some time to deploy that. Whereas in a whole bunch of other sectors, we'll be a bit more keen to deploy it today. As it is, we will be deploying the total funds, whatever we collect, over the course of the next 45 odd days. After closing the scheme and then units, etc. So that, and of course, the volatility that markets come, we get the benefit of that volatility as we are buying into the volatility that may come during that period of time. राइट। सो एक दो क्वेश्चन आए हैं जो हमारे काफ़ी सारे न्यू इन्वेस्टर ज्वाइंट हुए हैं, मैं उसको आंसर कर देता हूँ। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है ईएलएसएस बेनिफिट। सो डेफिनेटली ईएलएसएस के लिए अलग फंड है सर, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर एटीसी बेनिफिट। सेकंड वन क्वेश्चन पूछा है काफ़ी सारे लोगों ने कि लमसम बेटर है कि एसआईपी है सर। आप लमसम प्लस एसआईपी दोनों कर सकते हैं, ये फंड है। लमसम प्लस एसआईपी ऑलवेज बेटर रहता है। We have some, if you have done the blue chip fund lump sum plus SIP, what kind of wealth creation you have made Kotak blue chip fund, so that you can see the example. Our advisor can give you that. एंड एक क्वेश्चन जो कॉमनली लोगों ने पूछा है कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये पर्टिकुलर थीम फंड है, तो आई कैन गाइड you at least in your portfolio whenever this kind of opportunity will come, and if you have at least 5% 10% allocation in this kind of portfolio, then it will generate better return. एक क्वेश्चन आया है हरीश जी आपके लिए, जो जनरली काफी सारे लोगों ने पूछा है, ये जनरली लोगों के दिमाग में रहता है कि दैट इज अपॉर्चुनिटी इज ट्रू, यू हैव गिवन द नाइसली 7, आपने जो अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज 7 पॉइंट्स बोला है, बट व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न आई कैन एक्सपेक्ट इन कमिंग 4 to 5 year इफ आई इन्वेस्ट नाउ? देखिए, रिटर्न्स तो एनी विच केस मार्केट लिंक्ड है और उसका हम कोई गारंटी तो देते नहीं है। बट आपको मैं एक एक पॉइंट ब्रॉडली बता सकता हूँ कि जो एक स्लाइड था मैंने मिस किया था, विच इज बेसिकली ये स्लाइड। ओके, तो अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो जब भी मैन्युफैक्चरिंग चलता है, ये 20 साल का चार्ट है, तो इट वेंट फ्रॉम से दिस इज द एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू द इकोनॉमी, राइट? फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब वो साइकिल शुरू हुआ, it went up from maybe about 2 lakh crores to close to about 6 lakh crores in a span of maybe over say 8-9 years. So almost 3 times the output went over a 10-year kind of a period. और फिर 10 साल में it has been broadly flat. 5-6 लाख करोड़ आज के दिन में भी वही है, राइट? तो जैसे कि वो स्प्रिंग का जो कॉइल होता है ना, कि जितना आप और टाइट करोगे, जब रिलीज होता है तो ऑब्वियसली इट कम्स आउट विद अ स्लाइटली मोर बैंग। सो नाउ वी हैव बीन इन दैट फेज कि 10 साल में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, एंड आई एक्सप्लेन सम ऑफ देम कि डेट बहुत बड़ा था ओवरऑल साइकिल में, एनपीएस बहुत हाई थे, all of those are now part of history. Like I mentioned, those have changed dramatically. और हमें लगता है कि over the course of the next maybe 5-6-7 years, that आज के दिन से almost it can double in terms of the manufacturing output. Now, this is our expectation from whatever we think which can happen over the course of the next 5-6-7 years as far as the output from the manufacturing sector is concerned. Now,
some stocks will be part of this, some of them will go into unlisted companies, थोड़े होंगे इंटरनेशनल कंपनीज जहाँ पे ओवरऑल हम फायदा नहीं उठा सकते, और थोड़े बहुत ऐसे कंपनीज होंगे जो बिकॉज 10 साल में कुछ नहीं किए हैं, the profit growth will be much higher. But I think this will be a reasonable kind of visualizing कि आपको कैसे ये सेक्टर अनफोल्ड हो सकता है. Now, whether it happens in 4 years, 5 years, 6 years, quite honestly, I don't know. I don't think anybody will know. Um, but if you are expecting these changes to happen in the ground, I can quite see that जो मैंने आपको बताया कि वो स्प्रिंग का जो एनालॉजी है, पिछले साइकिल में ये इट वेंट अप ऑलमोस्ट 3x, ये साइकिल में हमें लगता है कि एटलीस्ट 2x हो सकता है from a 6-7 year kind of a perspective. So that should give you some sense of potential returns. Again, please, I am not saying कि ये guaranteed है कुछ. I mean, there are so many macro variables, बहुत सारी चीजें हैं that can go wrong. But I am giving you a glide path कि पहले कैसे हुआ था और अभी कैसे हो सकता है. And basis that, how returns can unfold over the course of the next 6-7 years. Please think from a longer term perspective. राइट. एक क्वेश्चन आया है हरीश जी आपके लिए. एक इन्वेस्टर ने पूछा है कि अभी आपने जैसे बताया कि भाई द इंटरेस्ट रेट इज इन लो एंड बिकॉज ऑफ दैट अफोर्डेबिलिटी केम इन द मार्केट एंड पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग, बट इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट विल मूव अप, how the impact will come in this kind of fund. So can you Sure. guide sir? देखिए, अगेन अगर मैं लास्ट का स्लाइड दिखाऊंगा, इसी जब न्यूट्रल से फर्स्ट गियर जाता है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आज के दिन में जैसे कि मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, आर प्रॉफिट्स आर ऑलमोस्ट 2x ऑफ केपेक्स. तो एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2-3 years अगर अपॉर्चुनिटीज बढ़िया है तो आप इन्वेस्ट करोगे. इंटरेस्ट रेट भले थोड़े 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट और ऊपर हो, तब भी विद इवन विद दैट यू विल बी मोर देन हैप्पी टू इन्वेस्ट, बिकॉज ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो, राइट? और India has seen, say, or the industry has seen maybe 9-10%, even best of companies उस टाइम पे भी प्रॉफिट्स हुए हैं. जैसे मैंने दिखाया 2000 से 2006-7 में, तब इंटरेस्ट रेट तो 12% थे, तब भी इन्वेस्टमेंट हो गई. बट सो ऑब्वियसली ऑल इंडस्ट्री वांट्स लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ऐसा नहीं, कोई भी इंडस्ट्री नहीं बोलेगा कि मैं मुझे 10% इंटरेस्ट रेट चाहिए. हर कोई बोलेगा कि आई वांट लो इंटरेस्ट रेट एट 5%, 6%. बट in my opinion, in the first gear, second gear, उतना फर्क नहीं पड़ता है as far as interest rates is concerned. As we move to the third and fourth gear, that is when banks also start increasing interest rate. Today, if you look at bank credit growth, it is at 7%, 8%. बैंक को भी चाहिए कस्टमर. रिटेल तो ग्रो हो ही रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट्स में ग्रोथ इज 1%, 2%. अगर लास्ट 10 साल में ग्रोथ नहीं हुआ है, केपेक्स नहीं हुआ है, तो banks have not been able to grow. So if you want to grow, you don't want to hike interest rates significantly. So the long answer that I've given is that unless you visualize the interest rates will go up by say 300-400 basis points in 1 year, which I think is quite unlikely, but who knows, anything is possible. As long as that is not the case, I think by and large, at least for the next 1-2 years, that shouldn't be a problem, too much of a problem for capex. But then yes, it's important that we move from the first, second gear to the third and fourth gear by year 3, year 4. So at that point of time, we shouldn't be looking at higher interest rates. So at least for the next 1-2 years, I don't think that is too much of a problem. Right. Sir, some of the people have asked the questions. At least according to you, they want to know from your side कि at least कितना टाइम होराइजन लेके ये फंड के अंडर में निवेश करना चाहिए सर. आपके हिसाब से कितना टाइम लेके हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वी कैन डेफिनेटली गेट द बेटर. तो जैसे कि मैं बता रहा था कि इसमें अच्छा मिक्स ऑफ सेक्टर्स है. थोड़े सेक्टर्स में ऑलरेडी अभी अर्निंग्स आ गए हैं या आ रहे हैं, प्रॉफिट्स ऑलरेडी दिख रहा है. थोड़े बहुत सेक्टर्स में अगले 18-24 महीने में वो टर्न होगा. और थोड़े बहुत जो सेक्टर्स है जैसे कि रिन्यूएबल हो, सोलार हो, बैटरी स्टोरेज हो, आज के दिन में तो कुछ भी नहीं है. मीन्स इट इज प्योरली an undertaking with the government. They are starting the plan today. वो स्टार्ट होते होते और 2 साल लगेंगे, उसके बाद स्टेबलाइज होने में और 6 महीने लगेंगे, उसके बाद आपको फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट्स दिखने आएंगे. एंड देन ईयर 4, ईयर 5 ऑनवर्ड्स इज वेयर यू विल स्टार्ट सेइंग
some improvement. So when you have got such a good balance of sectors, I would say that typical horizon should be 5 year plus. As it is, जैसे कि मैं बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि market is very expensive, but it is also not the case that market valuations are very cheap. And therefore, at this point of time, our view is equity, equity needs to be having a longer term orientation. And in this fund, because of the construct that I said, I think a 5 year at least horizon is needed for this fund to play out. So I would strongly urge you to have at least minimum that horizon. Obviously, longer the horizon you have, the better the odds of performance. सो और एक यूनिक क्वेश्चन आया है, मैं पूछने की ट्राई करूंगा कि आज के दिन में प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी आर रैपिडली चेंजिंग, डज दिस नॉट रिस्क इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सर? एब्सोल्युटली, आई थिंक इट इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन कि सभी जगह पे डिस्ट्रप्शन हो रहा है, and even manufacturing sector is not something that is isolated from the disruption. So but I think the good thing about industry today, कि पहले के जो इंडस्ट्री और आज की जो इंडस्ट्री है, let me give you some examples to give make my point. जैसे कि मैं बता रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग को थ्राइव करने में चार पांच चीजें होनी चाहिए. एक है रॉ मटेरियल, दूसरा है लेबर, तीसरा है एनर्जी, चौथा है यू कैन से द ओवरऑल प्रोसेस या टेक्नोलॉजी, और पांचवा है द गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, टैक्सेस हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, इम्पोर्ट ड्यूटी, करेंसी, वो सब चीज़ों को मैं एक में डालूंगा. अगर ये पांच चीज़ों का आप रखोगे तो एज फार एज रॉ मटेरियल इज कंसर्न, जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है, इट इज अबाउट वैल्यू, इंक्रीजिंग इन वैल्यू. जैसे कि हम आज के दिन में अगर स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, okay, the idea is can we not do food processing and increase the shelf life so that we can export it, and that is what companies are doing. So that I don't think we have a challenge because we clearly have low energy prices. जैसे कि मैं बता रहा था, we are now getting blessed on a positive side कि our overall energy costs are now going to start falling down, because more and more energy is coming from renewable sources of energy, right? So that is again a positive. Now, the one area which clearly is a worry, and which is the question that your viewer has asked, which is primarily in terms of technology. Now, because compared to the last 15-20 years, जहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा investment नहीं किए हो, आज के दिन में most of the companies are focused on getting technology which is on the basis of automation, 3D printing. All of these are not something which is completely only in the Western world. इंडिया में भी ये सब चीजें हो रही है, विच इज वेयर वी आर नाउ मोर कॉम्पिटिटिव देन चाइना. सो वी आर ट्राइंग टू गेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जितना हो सके ऑटोमेशन करे. सो व्हाइल द आइडिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज आल्सो टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, बट वी आल्सो नो दैट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, skilled labor is not so easily available. लोग तो बहुत है, but skilled labor is it takes 12-18 months to train labor force and then to deploy them in work floor and factories. So most of the investments, new investments, are happening with more automation, more robotics. जितना हो सके वो कर रहे हैं. But yes, at the end of the time, we need to be constantly. It's like being on a treadmill, right? कि एक बार हम रुक गए तो फिर फिसल के गिरेंगे जरूर. So we need to be constantly at it. But at this point of time, I don't think it is too much of a challenge. पहले का जो cycle था, उसमें अगर just to kind of complete this point, most of the industry or manufacturing used to be with PSUs, and PSUs, I mean, while they have a lot of positives, one of the negatives was that, they are too bureaucratic. They may not necessarily go for technology. Their overall motive was more of employment and, babu log kya bol rahe, etc. I'm saying of the overall culture, nothing against PSUs per se. But today, if you look at it, the share of PSUs in all of these sectors, auto में तो कोई PSU है नहीं, कैपिटल गुड में एक या दो PSU है, वो भी डिफेंस में एक्सेट्रा, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर उतना आसानी से घुस नहीं सकता है. फार्मा में अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट जीरो PSUs. मेटल्स एक जमाने में सिर्फ गवर्नमेंट मेटल कंपनीज थे, आज के दिन में एक दो कंपनीज है और वो भी बहुत छोटे हो गए हैं. ऑयल एंड गैस बाय एंड लार्ज अगेन इट इज बीइंग मोर एंड मोर इनटू प्राइवेट सेक्टर. FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो उसमें तो गवर्नमेंट है ही नहीं. केमिकल्स भी पहले गवर्नमेंट का था, अभी इंक्रीजिंगली इट इज मोर एंड मोर
private sector. Fertilizers again, पहले RCF बड़े बड़े government factories थे. आज के दिन में you have players like Coromandel, UPL, etc., which are all private sector. So वो जो mix है, that is becoming more and more private sector, and private sector hopefully is more forward thinking as far as technology is concerned. So overall, I would say it is a worry in the long run, but being now that we are moving from neutral gear to first gear, I'm not so worried of technology impacting the next 1 to 3 years. राइट। ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं जरा वापस से एक बार दोहरा देता हूँ कि सर कितना % इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पोर्टफोलियो में। सो सर, आपके पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी जो फंड है या मैन्युफैक्चरिंग इंडिया फंड जो है, एटलीस्ट 5 to 10% तक आप ऐड करोगे तो डेफिनेटली इट वुड बी बेनिफिशियल। एंड मोर इन्वेस्ट डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप एडवाइजर का कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो आपको बेटर गाइड कर सकता है, आपको आपका पोर्टफोलियो में बेटर अलोकेशन दे सकता है। So kindly contact your advisor. Definitely they will guide you for a better way. Just broadly I have given the answer for that. एक एडवाइजर का क्वेश्चन आया है सर, and the advisor is want to know कि we will follow the bottom up approach or top down approach in this fund generally. सो ऑब्वियसली दोनों का मिक्स लेंगे, ऐसा नहीं है। सी थोड़े सेक्टर्स जो है वो इनहेरेंटली बॉटम अप है, जैसे कि फार्मा सेक्टर, उसमें बिकॉज हर कंपनी अलग होती है, हर कंपनी का जो मॉलिक्यूल्स जिस पे रिसर्च कर रहे हैं अलग होते हैं, तो वो इनहेरेंटली बॉटम अप होते हैं। लेकिन थोड़े बहुत सेक्टर्स जो है वो टॉप डाउन होते हैं, जैसे कि ऑटो सेक्टर, आई वोंट से, आई मीन इट्स मोर टॉप डाउन, ऑयल एंड गैस इज मोर टॉप डाउन। अगर मैं फर्टिलाइजर से अगेन बोलूंगा तो मोर टॉप डाउन। इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी के बारे में कुछ जानना नहीं होता है एक्सेट्रा, बट जो पॉलिसी या एनेबलिंग एनवायरनमेंट है या ओवरऑल जो माहौल होता है, इट इज मोर गवर्न्ड बाय टॉप डाउन। सो वी विल यूज अ मिक्स ऑफ बोथ, but this will be more, I would say, 50-60% would be more bottom up and maybe 40-50% would be top down. So slightly more bottom up, बिकॉज इसमें थोड़े ज़्यादा मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज होंगे in the overall scheme of things, and so it will be slightly more bottom up compared to say a normal multi cap या flexi cap का जो भी fund हो, but yeah, it will be a mix of both. So I think most of the question we have covered, and our partner and investors all appreciate your presentation sir. उसको 7 points जो आपने बताया है, और आपको 7 points इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया जो आपने बताई है, बहुत अच्छा लगा। एंड आप जिस तरीके से दूसरा फंड में परफॉर्म करके लोगों का जो रिटर्न दिया है, somebody have written, we are expecting better than that return in this fund. So thank you for that, and thank you for all. Even we are running with the out of time also now. So thank you all the participants who joined with us today. For the detailed information, presentation, everything is available with the advisor. You can contact them. And fund already started on the 1st of February. Will close on 25th of February. Sorry, 15th of February. So we have another 10 days of time, but you can take it early is better. So that's what conclude the session, sir. If you want to add anything, last remarks, sir. No, absolutely. All of you hope you continue to remain safe. Think with a slightly longer term view. This is, I would say, a very good opportunity. But please come with a longer term view, and therefore give us whatever support and any help that you want from Kotak Mutual Fund side. My team will be there to help any of the NJ partners to try and clarify any doubts. Thank you so much for your support and your participation today. Thank you. Thank you, Harish ji, for such a wonderful session, and thank you all the participants joining with us today. Have a great evening. Thank you. That is a conclusion for the session. Thank you.